training. Dr. Ramesh Agrawal. Ramesh Agrawal. एक मिनिट. मीच दिसत होते त्यामध्ये, पण मला काही दिसत नाही होते. रेकॉर्डिंग सुरू आहे का? काय आता काय आलं? ना 5 मिनिट बाकी. बॉटल भरून जाना अन्न पाणी लागेल दादी. हवा मुताला उठायला जायला भेटेल. रेकॉर्डिंगच्या पाणी आण. कॅन्सल कर. पुन्हा स्टार्टिंग पासून लावशील. या बंद. रिकॉर्डिंग स्टार्ट केली आहे. होय, रिकॉर्डिंग सुरू केली आहे. पाहून घे. पाहून घे ना. सुरू केली आहे का? जोड घेते. नेट नाही. मेसेज मोबाईल व्हॉट्सअपवर. हॉटस्पॉट घे. Yeah, I'm Dr. Ramesh Agarwal. I'm the lecturer for you today for first aid trainings. Yes, sir. So I've done my business from Government Medical College Nagpur, my DIH, my AFI from Central Government, and PGCH from Gujarat. With this qualification, I'm practicing as an industrial physician from last 20-25 years. And I'm St. John Ambulance First Aid Training Center's Secretary for Valsad District. And also approved St. John Ambulance First Aid Training. This is the webinar on first aid training by Dr. Ramesh Agarwal by me. Industrial physician and St. John Ambulance approved first aid training. Today's discussion is about first aid, that is the medical help which all of us are rendering it to a victim or a patient at the site and on the way to the hospital before handling him to the doctor. The only motto of first aid is an endeavor towards reducing the seriousness of the injury and thus helping for the fast recovery and preventing fatalities. We have supported our first aid discussion with fundamental reasonings for essential understandings. The training is fragmented in small sessions called as chapters for further fine grasping of the training.
So you cannot work for any person unless and until you know how he works. Similarly, we have to understand how our body is working, how heart, lungs, brain and kidneys are working. So in case anyone stops, we can take over his job. But unless we understand how it is working, we can't do. Now before we begin with the training, please note down some 2 or 3 small points. Please note down your queries, the question that comes to your mind, so that we can have discussion in the last. Also, another most important thing is that at the completion of the training, a question paper will be handed over to you with 80 questions. All are true and false. There you must secure at least 50%, that is 40 questions must be right. No negative marking is there. Unless you pass in the exam, the certificate will not be awarded. Attendance only doesn't mean guaranteed passing and certifications. Unless you pass the written examination. Fine. With the discussion, we'll start our session. तो इमरजेंसी कंडीशन के अंदर मैं कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊँ। आपके समझने के लिए एक छोटा सा फिगर मैंने बोर्ड पे निकाला है। दिस इज द कंप्लीट फिगर, यू कैन सी ऑन द बोर्ड। सेंटर के अंदर हार्ट रखा हुआ है, लेफ्ट साइड में एक लंग रखा हुआ है। हमारे बॉडी में 2 लंग्स होते हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में। स्टडी पर्पस के लिए मैंने सिर्फ एक लेफ्ट का लंग आपको बताया है, एक लंग राइट में भी होता है, लेकिन स्टडी पर्पस के लिए एक लंग काफी। देखा फिर से कि सेंटर में हार्ट रखा है, एक लेफ्ट साइड में लंग रखा है। ये हार्ट से बड़ी वाली रेड कलर के आर्टरीज, ब्लड वेसल चैनल आ रही है। धीरे से मैंने देखा कि ये चैनल काफी छोटी हो गई है और छोटी होने के बाद नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड हो चुकी है। इसको बोलते हैं कैपिलरी बेड। और मैं देख रहा हूँ कि साइड में छोटे छोटे सेल्स लगे हुए हैं जिसमें न्यूक्लियस है। इन कैपिलरीज के बाद में कैपिलरीज फिर से रीयूनाइट हो गई और एक बड़ी सी वेसल फिर से बनी जो कि हार्ट की तरफ जा रही है। लेकिन देखा कि ये वेसल का कलर बदल गया है, ब्लू कलर हो गया और ये ब्लू चेंबर ऑफ हार्ट में जा रही है। रेड चेंबर ऑफ हार्ट में से रेड कलर की आर्टरी निकल रही है और ब्लू वाली आर्टरी जो ब्लू चेंबर में, ब्लू चेंबर दोनों अलग अलग रखे। ये 2 रेड और ब्लू ब्लड मिक्स नहीं होते। ब्लू चेंबर से ब्लड से लंग्स की तरफ हार्ट पंप कर रहा है। लंग्स में जाने पर ऑक्सीजन को पिकअप करेगा, जैसे ही ऑक्सीजन को पिकअप करेगा ब्लड का कलर ब्लू से रेड होगा। रेड चेंबर में वापस रेड चेंबर वाला ब्लड फिर से बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। कैपिलरी बेड यहाँ पर से ऑक्सीजन निकाल लिया जाएगा और सेल्स इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन निकालने के बाद ब्लड का कलर जो रेड है ऑक्सीजन की वजह से, जितना ऑक्सीजन कम रहेगा उतना ब्लड का कलर रेडनेस कम हो जाएगा। ब्राइट रेड, ब्राइट ऑक्सीजन, थोड़ा कम ऑक्सीजन डल रेड, और थोड़ा कम ऑक्सीजन ब्लूइश, और थोड़ा कम ऑक्सीजन ब्लूइश कलर, और ऑक्सीजन निकाल देंगे तो इट विल बी ब्लैकिश इन कलर। ब्लू कलर का ब्लड यानी कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ हार्ट में आने के बाद इसको फिर से लंग में पंप कर दिया गया। ऑक्सीजन को पिकअप करते हुए ब्लड फिर से रेड चेंबर में आ गया। हमने देखा छोटा सा काम, हार्ट सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहा है। हमारे बॉडी को ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई कर रहा है और हमारे लंग्स में विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई कर रहा है ताकि जाओ और ऑक्सीजन को लेके आओ। इन शॉर्ट हमारा हार्ट सिर्फ एक काम कर रहा है, दैट इज पंपिंग, लेकिन 2 जगहों पे ब्लड पंप कर रहा है। मेरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप कर रहा है और मेरे लंग्स को डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप कर रहा है ऑक्सीजन लाने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा हार्ट से एक काम कर रहा है, पंपिंग वाला काम, तो 2 जगह ब्लड पंप कर रहा है। ऑक्सीजन वाला ब्लड मेरे बॉडी को पंप कर रहा है, विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड ऑक्सीजन लाने के लिए लंग्स को पंप कर रहा है।
लेट अस सी कि हमारा ब्लड, हमारा हार्ट 1 मिनट में कितनी बार पंप कर रहा है। सब लोग अपना अपना लेफ्ट हैंड ऐसा रखेंगे, राइट हैंड का ब्रिज जॉइंट इसके ऊपर रखेंगे, अपर बाजू को टच करेंगे, छोटी उंगली को भूल जाएंगे और ये 3 उंगली से साइड में हड्डी को टच करेंगे। धीरे से 3 उंगलियों को सामने ले लेंगे, हड्डी के सामने ले लेंगे, हल्का प्रेस करेंगे, पल्स फील कर पाएंगे आप। अब काउंट करने के पल्स 1 मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट पंप कर रहा है। मैं टाइमर स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट काउंटिंग। एक मिनट फिनिश होने के बाद मैं आपको बताऊंगा, अभी चालू है। आपको काउंट करना है कि 1 मिनट मेरा हार्ट कितनी बार पंप कर रहा है। Anyway, stop counting. हम सभी लोग देख रहे हैं, सभी का हार्ट रेट कोई फिक्स नहीं, किसी का 80 होगा, किसी का 82 होगा, किसी का 85 होगा, किसी का 70 होगा, 75 होगा, हो सकता है किसी का 88, 90 भी हो, 60। बट डेफिनेटली इट इज बिटवीन 60 एंड 100। लेकिन ये 60 और 100 के बीच में है। एक नॉर्मल हार्ट रेट एट दिस कंडीशन 60 और 100 के बीच ही रहेगा। 60 के नीचे तो हम उसको ब्रैडिकार्डिया बोलेंगे, और 100 के ऊपर है तो हम उसको टकीकार्डिया बोलेंगे। मेरा हार्ट अगर 80 टाइम्स पंप हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये एवरेज ले लेंगे, किसी का 80 होगा, 85 होगा, 75 होगा, 90 होगा, हम एक एवरेज ले लेते हैं 80, स्टडी पर्पस के लिए एवरेज ले लिया 80। अगर मेरा हार्ट 80 टाइम्स पंप कर देता है 1 मिनट के अंदर, तो प्रेजेंटली मेरी जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। जो भी मेरी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है प्रेजेंटली, और इन अदर वर्ड एट रेस्ट मेरी ऑक्सीजन जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होने के लिए मेरे हार्ट को अराउंड 80 टाइम्स कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा। अगर मेरी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है तो मेरा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर मैं भागता दौड़ता हूँ, फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ, तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई। अगर किसी कारण से मेरा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाती है तो मेरा हार्ट रेट कम हो जाएगा। मैं बैठा हूं, अब लेट जाता हूं, थोड़ा आराम करता हूं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो गई, हार्ट रेट भी कम हो। नींद में चला गया, हार्ट रेट और कम हो गया, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और कम हो। डीप स्लीप में चला गया, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और कम, हार्ट रेट और कम। बेहोश हो गया, कोमा में चले गया, हार्ट रेट और कम, मर गया, हार्ट रेट 0, डेथ 0 हार्ट रेट। सो हार्ट रेट जो है हमारा वेरी होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अगर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो गई, हार्ट रेट कम हो जाएगा। एट रेस्ट हार्ट रेट इज बिटवीन 60 to 100। लेकिन भागने दौड़ने के बाद 110, 120 भी जाएगा। लेट जाने के बाद, सो जाने के बाद, डीप स्लीप में जाने के बाद हो सकता है कि 50 भी जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल ब्रेडिकार्डिया एंड फिजियोलॉजिकल टकीकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट 60 से नीचे, टकीकार्डिया मींस हार्ट रेट 100 से ऊपर। बट दिस इज फिजियोलॉजिकल, कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है साथ में। सो गया है डीप स्लीप में, करके हार्ट रेट 50 है, अब रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन कम हो गई, भाग के दौड़ गया है, फिजिकल एक्सरसाइज हो गया, करके हार्ट रेट ज्यादा है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ गई, बीमारी नहीं। उसी प्रकार अगर मेंटल एक्सर्शन है तो भी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। आप खड़े हैं, सामने से टाइगर आ गया, आप खड़े, सामने सांप आ गए, आपको बॉस ने बुलाया, कुछ गलती कर दी है, बच्चा एग्जाम में फेल हो गया, घर आ रहा है, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। सो व्हेनेवर देयर इज अ फिजिकल एक्सर्शन और अ मेंटल एक्सर्शन, हार्ट इंक्रीज। और जब भी फिजिकल एक्सर्शन कम होगा, मेंटल एक्सर्शन
कम होगा, इन अदर वर्ड आदमी सो रहा है, मेडिटेशन में चला गया, हार्ट रेट विल बी लोअर साइड, बट दिस इज कॉल्ड एज फिजियोलॉजिकल चेंज इन द हार्ट रेट, नॉट पैथोलॉजिकल। अगर हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, अगर मेंटल एक्सर्शन भी नहीं है, फिजिकल एक्सर्शन भी नहीं है, तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है, कोई बीमारी है जिसमें हार्ट रेट बढ़ जाए। फाइन, इस टॉपिक को थोड़ा साइड में रखते हैं। एक और फंडामेंटल चीज हमें पढ़ने की है, दैट इज ब्लड प्रेशर। हम सभी कभी न कभी डॉक्टर के पास गए होगा, हमने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया होगा। किसी का 120/80 होगा, किसी का 130/80 होगा, किसी का 140/90 होगा, किसी का 110/80 होगा, किसी का 110/70 होगा। एक ऊपर का ब्लड प्रेशर है, नीचे का ब्लड प्रेशर। देखिए, जब भी हम प्रेशर की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर के अलावा किसी चीज की बात करते हैं, वाटर प्रेशर की बात करते हैं, वेपर प्रेशर की बात करते हैं, किसी पाइप में पानी के प्रेशर की बात करते हैं, किसी पानी में स्टीम प्रेशर की बात करते हैं, तो एक ही फिगर आता है। लेकिन हमारे ब्लड प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो दो फिगर आते हैं, ऊपर का एक नीचे का। ये दो फिगर कहां से जनरेट हुई, ये पहले मैं आपको बता देता हूं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मैक्सिमम ब्लड जो है आर्टरीज में आएगा और प्रेशर आर्टरीज में बढ़ जाएगा। It will go up. Say it will go to 120, 130, 140 or 110. That is the highest blood pressure possible after a heart contraction. हार्ट जब कम करेगा, मैक्सिमम ब्लड रेड वाले चैनल में आएगा, मैक्सिमम ब्लड जो है ये रेड वाले चैनल में आएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो ब्लड फ्लो हो रहा है आगे की तरफ। जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो ब्लड फ्लो हो रहा है आगे की तरफ, और ब्लू वाला ब्लड जो है वो ब्लू चैम्बर में आ रहा है। ब्लड प्रेशर जो आर्टरीज में है और धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है। अगेन हार्ट सेकंड टाइम कांटेक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर फिर से बढ़ जाएगा। अगेन हार्ट रिलैक्स हो रहा है, ब्लड प्रेशर धीरे धीरे आर्टरीज में कम हो रहा है क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है। थर्ड टाइम अगेन द हार्ट विल कांट्रैक्ट एंड द प्रेशर विल गो अप। इन अदर वर्ड्स, हार्ट जब कांटेक्ट होता है तो मैक्सिमम प्रेशर आर्टरीज में होता है, दैट इज 120, 130 और 150, और धीरे धीरे प्रेशर 140 से 130, 120, 110, 100, 90, 80, चाहे वो 80 आ गया, हर सेकंड टाइम कांटेक्ट करता है, अगेन द प्रेशर क्लाइम्स टू 120 और 130। एक को बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और हाइयर ब्लड प्रेशर और अपर ब्लड प्रेशर, दूसरे को बोलेंगे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और लोअर ब्लड प्रेशर। हम फर्स्ट एड को ये दोनों ब्लड प्रेशर याद रखने की कोई जरूरत नहीं। हमको सिर्फ एक ब्लड प्रेशर याद रखने का, दैट इज अपर ब्लड प्रेशर। किसी का 120 होगा, किसी का 130 होगा, किसी का 110 होगा। हमें नीचे वाले ब्लड प्रेशर से कुछ नहीं करना। ऑल फर्स्ट एडर्स आर कंसर्न विद ओनली सिस्टोलिक, ओनली द अपर ब्लड प्रेशर। इसके बाद अब जब भी हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे तो ऊपर का ब्लड प्रेशर, क्या आपका ब्लड प्रेशर कितना है तो 120, आपका कितना है तो 130, आपका कितना है तो 110। इट डिपेंड्स ऑन बॉडी बिल्ड। थिन बिल्ड पर्सन होंगे तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मे बी 110। हेफ्टी आदमी है, वेट है, बॉडी बिल्डर से 130, 140 में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और वो उसके लिए नॉर्मल है। फाइन, एक छोटा बात और करेंगे। हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर कौन मेंटेन करता है? Which is the fundamental principle, fundamental facts, fundamental things जो हमारे बीपी को मेंटेन, that is most important part. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पूछा कि भाई पाइपलाइन में वाटर का प्रेशर कितना है, आपने कहा कि XY है। मैंने कहा प्रेशर बढ़ाना है, पानी का कैसे बढ़ाऊं? आपने कहा पानी का अमाउंट बढ़ा दीजिए, पॉप को खोल दीजिए, ज्यादा पानी आएगा प्रेशर बढ़ जाएगा पाइप। किसी ने कहा पानी का अमाउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं, पाइप को थोड़ा छोटा कर दीजिए, प्रेशर बढ़ जाएगा। तीसरे आदमी ने कहा कि भाई पानी का अमाउंट भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन को छोटा भी करने की जरूरत नहीं है। जितना पानी पाइप में है उसी को फास्ट घुमाइए, जितना पानी पाइप में है उसी को फास्ट सर्कुलेट करिए, प्रेशर बढ़ जाएगा। तीनों बातें आपको समझ में आए। ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा दीजिए, प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड वॉल्यूम को कम कर दीजिए, प्रेशर कम हो जाएगा। हार्ट का पंपिंग बढ़ा दीजिए, प्रेशर बढ़ जाएगा क्योंकि सर्कुलेशन फास्ट हो। आर्टरीज और वेन्स की साइज थोड़ी छोटी कर दीजिए, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब आर्टरीज और वेन की साइज तो हमारे हाथ में है नहीं, छोटा करना है बड़ा एटो प्रोसेस में, लेकिन अपने आप छोटी बड़ी हो जाती है।
ब्लड प्रेशर को मैनेज करती है। लेकिन दो चीजें हमारे हाथ में जो हम देख रहे हैं कि ब्लड वॉल्यूम जितना था उतना ही रखा और हार्ट रेट अगर बढ़ा दिया तो प्रेशर बढ़ जाए। ब्लड वॉल्यूम थोड़ा कम कर दिया, हार्ट रेट बढ़ा दिया तो प्रेशर नीचे नहीं जाएगा बल्कि नॉर्मल की तरफ फिर से एलिवेट हो जाएगा। मतलब ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए बढ़ा हुआ हार्ट रेट काफी मदद करेगा। थोड़ा आगे चलते हैं। सो तीन चीजें हैं जो कि ब्लड प्रेशर मेंटेन करते हैं। वन इज हार्ट रेट, वन इज ब्लड वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ ब्लड। हमारे शरीर में 4 से 5 लीटर ब्लड होता है, किसी का 4.5, किसी में 5, किसी में 4.5, डिपेंडिंग अपॉन बॉडी। सो अमाउंट ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर, and channel size is responsible for maintaining the blood pressure. उसमें हम चैनल साइज को भूल जाएंगे, हार्ट रेट एंड ब्लड वॉल्यूम दो चीज को याद रखेंगे। दोनों में फंडामेंटल क्या है? हार्ट रेट फंडामेंटल, ब्लड वॉल्यूम फंडामेंटल। सो सिंपल। अगर ब्लड ही नहीं तो हार्ट रेट कितना भी हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर नहीं बढ़ेगा। मतलब हार्ट रेट फंडामेंटल नहीं, बढ़ता हुआ हार्ट रेट ब्लड प्रेशर तभी बढ़ा पाएगा अगर चैनल्स के अंदर ब्लड है तो। सो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड इटसेल्फ, ब्लड क्वांटिटी, दैट इज द फंडामेंटल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड प्रेशर। एंड अदर टू फैक्टर्स, दो फैक्टर जो बचे हुए हैं, हार्ट रेट और ब्लड वेसल्स का साइज, दोनों हमको मदद करेंगे थोड़ा हार्ट रेट, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए। फाइन, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि हमारे बॉडी के अंदर 4.5 से 5 लीटर ब्लड होता है। मान लेते हैं किसी एक्सीडेंट में, किसी इंजरीज के अंदर हमारे बॉडी से 300 ml ब्लड का लॉस हो गया, निकल गया हमारे बॉडी से, या किसी कारण से किसी को वोमिटिंग हो रहा है, लूज मोशंस हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, दैट इज ऑल्सो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द ब्लड। सो किसी कारण से हमारे बॉडी से 300 ml ब्लड निकल गया। हमारे बॉडी में क्या चेंजेस है? कोई बोलेगा वीकनेस लगेगा, कोई बोलेगा चक्कर आएगा, लेकिन 300 ml बढ़ जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं। हम जानते हैं कि हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप भी किए हैं, आप में से कई लोगों ने ब्लड डोनेशन भी किया होगा। ब्लड डोनेशन करते वक्त वो 300 ml की बॉटल होती है जिसमें 300 ml ब्लड दिया जाता है। कितने लोग हैं आप में से जिन्होंने ब्लड डोनेशन दिया और ब्लड डोनेशन देने के बाद किसी को कोई चक्कर या वीकनेस नहीं आया? फाइन, किसी एक को आया होगा, किसी 2 लोग को आया भी होगा, बट दैट इज साइकोलॉजिकल। ब्लड का बॉटल देख के, इंजेक्शन के पेन से, या सम अदर रीजन। अगला सवाल, 300 ml ब्लड देने के बाद मुझे चक्कर क्यों नहीं आया? ये सवाल है। 300 ml ब्लड देने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर जरूर डाउन नहीं हुआ होगा, और डाउन होता तो मुझे चक्कर आता, मगर डाउन नहीं हुआ इसलिए मुझे चक्कर नहीं आया। अगला सवाल, 300 ml ब्लड देने के बाद मेरा ब्लड प्रेशर डाउन क्यों नहीं हुआ? किसने मेंटेन कर दिया इसको? आंसर इज क्वाइट सिंपल। जब आपके बॉडी से 300 ml ब्लड लॉस हो गया तो आपका हार्ट रेट बढ़ गया, और इंक्रीज हार्ट रेट ने आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन कर दिया। अब की बार ब्लड डोनेशन कैंप में अगर जाते हो तो जाइए, 5-10 मिनट पहले बैठ जाइए, आराम से रिलैक्स हो जाइए, अपना हार्ट रेट, अपना पल्स रेट चेक कर लीजिए, इट इज 80-85 जो भी। ब्लड डोनेशन देने के बाद फिर से आराम से बैठ जाइए और अपना अपना पल्स रेट फिर से एक बार काउंट करिए। डेफिनेटली पल्स रेट जो है वो पहले से ज्यादा होगा। अगर पहले 80 होगा तो अभी 85, 86, 87 होगा। अगर पहले 82, 83 होगा तो अभी 87, 88, 89 होगा। तो ये बढ़ते हुए पल्स रेट में आपके बीपी को डाउन नहीं होने दिया, जबकि आपका बॉडी से 300 ml ब्लड निकाल दिया। दिस इज ऑल एटो प्रोसेस। 90% फर्स्ट एड हमारे बॉडी में खुद होती है, एटो होती है। हमें उसे समझ
थोड़ा सा फर्स्ट एड की हेल्प 10% काम हमें जाता है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही करेक्ट वे से उसे करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फिर से कहता हूं, 90% ऑफ द फर्स्ट एड बॉडी हमारी खुद कर रही है, जिसे हमें देखना है, जिसे हमें समझना है, ताकि थोड़ी हेल्प जो हम करने जा रहे हैं या करेंगे वो एकदम परफेक्ट, करेक्ट, प्रिसाइज होगी। आगे चलते हैं। हार्ट मशीन में चले गए हैं, इंजरीज हो गई है, ब्लीडिंग हो रहा है बहुत ज्यादा, 300 ml ब्लड ऑलरेडी लॉस हो गया, लेकिन 300 ml ब्लड लॉस होने से कोई तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहा। ब्लीडिंग कंटिन्यूस था और 300 ml ब्लड हमारे बॉडी से लॉस हो गया, अब क्या होगा? सिंपल। स्टेज नंबर 1 में हमने देखा कि बढ़ते हुए हार्ट रेट ने ब्लड प्रेशर को डाउन नहीं होने दिया, लेकिन कभी तो ऐसी कंडीशन आएगी कि बढ़ता हुआ हार्ट रेट ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लड लॉस कंटिन्यूस है। और वो स्टेज जहां पर बढ़ता हुआ हार्ट रेट बीपी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लड लॉस कंटिन्यूस है, दैट स्टेज इज कॉल्ड सेकंड स्टेज। और सेकंड स्टेज यानी कि कंटिन्यूस ब्लड लॉस एंड इंक्रीजिंग हार्ट रेट, बट रिजल्ट इज ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जा रहा है। जहां आप स्टेज नंबर 2 में चले गए, यानी कि ब्लड प्रेशर कम हो गया, नो डाउट हार्ट रेट आपका बढ़ रहा है, पहले 90 था 100 110 हो जाएगा, बड़ी कोशिश कर रहा है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की, लेकिन ब्लड लॉस इतना ज्यादा है कि बढ़ता हुआ हार्ट रेट बीपी को नहीं मेंटेन कर पाया, और इस वक्त बीपी कम हो गया और आपको चक्कर आना शुरू हो गया। स्टेज नंबर 2। आपने कभी देखा कि किसी आदमी को चक्कर आ रहा है और वो दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गया, कहने लगा कि भाई मुझे चक्कर आ रहे हैं, चलो डॉक्टर साहब मेरा बीपी देखिए? नहीं। जहां चक्कर आना शुरू हो जाएगा वहीं पर पेशेंट अपने आप को संभालेगा, बैलेंस करेगा, सपोर्ट लेगा वॉल का, और धीरे से बैठ जाएगा। हो सकता है ब्लड प्रेशर और ज्यादा कम हो तो लेट जाएगा। अगेन एटोप्रोसिस। मुझे किसी को समझाने के, बताने की जरूरत नहीं कि चक्कर आने के बाद बैठना जरूरी है या लेटना। ये एटोप्रोसिस है, वो खुद ही बैठ जाएंगे, खुद ही लेट जाएंगे। फिर कह रहा हूं 90% फर्स्ट एड ओकर्स इन एटोप्रोसिस। समझने वाली बात है। ब्लड प्रेशर कम होने के बाद चक्कर क्यों आए? सिंपल क्वेश्चन। आंसर इज ऑल्सो वेरी सिंपल। हमारा ब्रेन, हेड एंड ब्रेन हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर। जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा तो सब में पहले ब्लड हमारे ब्रेन को कम सप्लाई, सब में पहले कौन अफेक्ट हो जाएगा? जो हाईएस्ट पोजीशन में बैठा है। हमारे म्यूनिसिपैलिटी के नल में अगर पानी कम आता है, कम फोर्स से आता है, तो पहले माले पे नहीं छोड़ेगा, ग्राउंड वाले को मिलेगा। सिमिलरली जब ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो हमारा ब्रेन सब में पहले सफर होगा, और जिस क्षण में ब्लड प्रेशर कम होगा और हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा, उसी क्षण आपको चक्कर आएगा और आप बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे। द मोमेंट आप बैठ के लेट जाते हो, जैसे आप लेट जाते हो तो आपका हेड जो है, जो हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर था, ना आप ग्राउंड लेवल पे आ गए, ब्लड सप्लाई हेड को, ब्रेन को बढ़ गया और आपके चक्कर चले। एटोप्रोसिस। अभी भी ब्लड प्रेशर कम है, लेकिन अब आपको चक्कर नहीं आ रहे क्योंकि आप लेट गए। फाइन। स्टेज नंबर 3। मान लेते हमारी बॉडी में और 300 ml ब्लड निकल गया, इंजरीज है, हाथ मशीन में चले गए, या एक्सीडेंट है, फ्रैक्चर है, ब्लड लॉस कंटिन्यूस है। मान लेते कि 300 ml ब्लड और लॉस हो गया, अब क्या होगा? अब बॉडी को डिसाइड करना पड़ेगा कि किसे ब्लड सप्लाई दिया जाए और किसे ब्लड सप्लाई नहीं दिया जाए, या किसे ब्लड सप्लाई कम दिया जाए और किसी को ब्लड सप्लाई नॉर्मल मेंटेन किया जाए। जैसे कि सिंपल बात है, मान लेते कि आप लोग जहां भी काम कर रहे हैं, आपका सैलरी अगर आधा कर दिया जाए, तो आप घर में जाने के बाद अपने कुछ खर्चे कम कर देंगे
और कुछ जो जरूरी खर्चे हैं, जरूरी एक्सपेंडिचर है, उसको चालू रखेंगे। स्कूल का खर्च चालू रखेंगे, किराने का खर्च चालू रखेंगे। ऑटो रिक्शा यूज करना, बस यूज करना बंद कर देंगे, फिल्म देखना बंद कर देंगे, बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाना बंद कर देंगे। सिमिलरली जब और ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा तो हमारी बॉडी डिसाइड करेगी कि किसे ब्लड सप्लाई कंटिन्यूस करना है और किसे ब्लड सप्लाई थोड़ा कम करना है। फॉर एग्जाम्पल, हार्ट, लंग, ब्रेन और किडनी, ये हमारे बॉडी की 4 बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई बंद कर देंगे, सिस्टम खत्म, फेल। लंग्स को ब्लड सप्लाई बंद कर देंगे, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम कर देंगे, तो किडनी को ब्लड सप्लाई बंद कर देंगे, तो सिस्टम फेल। नो डाउट, हार्ट, लंग, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने से सिस्टम तुरंत बंद हो जाएगी, जबकि किडनी को ब्लड सप्लाई कम कर देते हैं तो सिस्टम तुरंत फेल नहीं होगा। बट मे बी ओवर ए कपल ऑफ डेज, मे बी आप 1 हफ्ते बाद जब मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बढ़ेंगे तब सिस्टम बंद हो जाएगा। दूसरी बात, हमारा हार्ट, लंग, ब्रेन और किडनी को 1 मिनट के अंदर कितना ब्लड चाहिए? 125 ml हार्ट को, 125 लंग्स, 125 ब्रेन एंड 125 किडनी, दिस टोटल 500 ml ऑफ ब्लड। 1 मिनट में अगर ये 4 आदमी को 500 ml ब्लड मिल जाता है तो इनका रिक्वायरमेंट जो ऑक्सीजन का है वो फुलफिल हो जाता है। मेरी बॉडी में 5 लीटर ब्लड है जो हर 1 मिनट में लंग्स में जा रहा है, ऑक्सीजन को उठा के ला रहा है, हर मिनट में लंग्स में जा रहा है, ऑक्सीजन को उठा के ला रहा है। 500 ml मेरे चारों बॉस खुश है, तो ये 4.5 लीटर में ब्लड में ऑक्सीजन कौन दे रहा है? This is the big question. Answer is also very simple. हमारे बॉडी में जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन देती है, और हमारे बॉडी में सब में बड़ी चीज, बड़ी सिस्टम जो है वो है मसल्स। मसल्स, हाथ के मसल्स, पैर के मसल्स, देखिए कितने बड़े बड़े मसल्स हैं हमारे हाथों में। ट्रिमेंडस ऑक्सीजन सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर मसल्स। तो हमारी बॉडी कोशिश करेगी मसल्स अपना काम ना करें, काम करेंगे ज्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे, काम नहीं करेंगे कम ऑक्सीजन मांगेंगे। हमने स्टेज नंबर 2 में देखा कि जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हो गया, आदमी को चक्कर है, वो बैठ गया, लेट गए। आपने देखा लेटा हुआ आदमी हाथ पैर हिला रहा है, पैर ऊपर कर रहा है, नीचे कर रहा है, नहीं। जब आप मूवमेंट्स करोगे तो मसल्स काम करेगी, और मसल्स जब काम करेगी तो ऑक्सीजन मांगेंगे, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑक्सीजन मांगेंगे, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन मांगेंगे। जैसे आदमी बैठ गया, लेट गया, मसल्स का काम बंद। मसल्स को नो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दिया जाता है। मसल को जिंदा रहने के लिए जितना ब्लड सप्लाई चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए, उतना मिल रहा है, लेकिन उनसे काम बंद हो गया, ऑटो सिस्टम। लेकिन स्टेज नंबर 3 के अंदर मसल्स का ब्लड सप्लाई और कम किया जाए, फालतू के खर्च और कम करना पड़ेगा। 2 जगह पर फालतू खर्च चल रहा है, फालतू नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा खर्च चल रहा है। एक तो मसल्स, दूसरा स्किन। स्किन दिखती बड़ी पतली है, लेकिन पूरी स्किन अगर बॉडी से खरोच के अगर निकालते हैं तो इट्स बिगर देन द लिवर। तो अनदर सिस्टम जो हमारी बॉडी की है वो स्किन, जो कि बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई मांग रही है, दे रिक्वायर मच ऑक्सीजन। तो ये 2 सिस्टम को ब्लड सप्लाई हमारी बॉडी एट प्रोसेस में कम करेंगे। जब हार्ट, लंग, किडनी और ब्रेन इसका ब्लड सप्लाई सैक्रिफाइस नहीं करना है, इसलिए हमारी बॉडी मसल्स का और स्किन का ब्लड सप्लाई सैक्रिफाइस करेगी। मुझे बैठे बैठे समझ लेना है कि स्टेज नंबर 3 में जा रही है हमारी बॉडी, कंडीशन ज्यादा सीरियस हो रही। बैठे बैठे समझ लेना कि अब मसल्स को, स्किन को ब्लड सप्लाई और कम कर दिया गया है, और पर्सन इज लैंडिंग इनटू मोर सीरियस स्टेज। मेरे पास ना तो ब्लड प्रेशर एपरेटस है, ना ही तो मेरे पास स्टेथोस्कोप है। एक फर्स्ट एडर के पास दिमाग के अलावा कुछ नहीं है।
कैसा समझेंगे कि स्किन को और मसल्स को ब्लड सप्लाई बॉडी ने कट डाउन कर दिया। सिंपल है। मसल्स के काम तो आप समझ गए। मसल का क्या काम है? मसल का यही काम है कि मेरे पैर को हिलाएगा, मेरे हाथ को हिलाएगा, मुझे एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाएगा। लोकोमोटरी फंक्शन। मुझे बैठने में मदद कर रहे हैं मेरे मसल्स, मुझे खड़ा रहने में मदद करेंगे मेरे मसल्स। मेंटेनिंग ऑफ पोस्चर। मुझे हाथ ऊपर करना है, मेरे मसल्स की मदद से मैंने हाथ ऊपर किया। मूड बांध रहा हूं, छोड़ रहा हूं, इट इज बिकॉज ऑफ मसल। ऑल मूवमेंट्स आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ मसल्स। मसल्स को ब्लड सप्लाई थोड़ा कम कर दिया, मसल्स के मूवमेंट्स बंद कर दिए। उसी प्रकार स्किन का क्या फंक्शन है हमको समझना है। स्किन के फर्स्ट यूनिट के लिए दो इंपॉर्टेंट फंक्शन। एक फंक्शन सिंपल, कवरिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी को कवर कर दी ताकि बाहर से कोई मटेरियल अंदर नहीं आएगा, अंदर से कोई मटेरियल बाहर नहीं जाएगा। दैट इज वन फंक्शन ऑफ स्किन। लेकिन ये जो फंक्शन है पैसिव फंक्शन है, इसके लिए कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये काम बैंडेज भी कर सकते हैं। जब मुझे वुंड हो जाएगी, मुझे इंजरी हो जाएगी, तो बैंडेज बांध देंगे। बैंडेज बांधने के बाद बाहर से कोई डस्ट पार्टिकल, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं आएंगे और अंदर से कुछ बाहर भी नहीं जाएंगे। अंदर से क्या बाहर नहीं जाने देती है इसकी? दैट इज अ सिंपल क्वेश्चन टू यू। बाहर से अंदर क्या नहीं है ये तो मैंने आपको बता दिया। डस्ट नहीं आएगा, बैक्टीरिया नहीं आएगा और जो भी फॉरेन बॉडीज है वो अंदर नहीं आएगा। लेकिन अंदर से क्या बाहर नहीं जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन। सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरा ब्रेड का पैकेट है, मैंने ब्रेड के पैकेट खोल दिया और ब्रेड छोड़ दिया हुआ, क्या होगा? ब्रेड सूख जाएंगे, ब्रेड में जो पानी है वो उड़ जाएगा। सिमिलरली स्किन अगर निकाल देते तो हमारे बॉडी में जो पानी है वो उड़ जाएगा। मसल्स जो है ड्राई हो जाएंगे, टेंडन जो है ड्राई हो जाएंगे, पेट खोल देते हैं, किडनीज ड्राई हो जाएंगे, लिवर ड्राई हो जाएंगे। जैसे कि खजूर खारक हो जाएगी, खजूर खारक हो जाएगी। और हमारे बॉडी में अगर कोई भी पार्ट ड्राई हो जाता है तो वो काम नहीं करेंगे। मसल श्रिंक हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। टेंडन ड्राई हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। किडनी लिवर ड्राई हो जाएगी, काम नहीं करेंगे अगर पानी इवापोरेट हो जाएगा। एक बहुत बड़ा काम हमारी स्किन कर रही है, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ मॉइस्चर इनसाइड द बॉडी। सभी चीजों को गीला रखना ताकि वो ठीक से फंक्शन कर सके। अगर सिस्टम, अगर ऑर्गन्स ड्राई हो जाएंगे तो काम नहीं करेंगे। फाइन। तो बाहर से किसी चीज को अंदर नहीं जाने देंगे और अंदर से पानी को बाहर नहीं जाने देंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, स्किन स्ट्रेंथ। लेकिन ये काम है पैसिव काम है, इसके लिए कोई एनर्जी कंजम्पशन नहीं है। वन मोर फंक्शन ऑफ द स्किन इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट एडर्स इज टेम्परेचर रेगुलेशन सिस्टम। मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का काम स्किन कर रही है। एग्री विथ मी? कैसे? वेरी सिंपल। हमारी बॉडी पसीना बनाती है और पसीना बनाने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर रही है। देखो मैं आपको छोटा एग्जांपल बताता हूँ। धूपकाले का समय है, मैंने सोचा फ्रिज का पानी नहीं पीऊंगा, मटके का पानी पीऊंगा। मैं मटका ले आया, मटके में पानी ठंडा हो। मेरे पास स्टील का टैंकी थी, उसमें भी पानी रखा था, लेकिन उसका पानी ठंडा नहीं होता। मटके का पानी क्यों ठंडा होता है? क्योंकि मटका पसरता है और उसमें से जो पजरता है पानी, जो मटके के ऊपर लगता है, बाहर की जो हीट है वो पजरे हुए पानी को मटके के ऊपर से उड़ा ले जाती है और हीट अंदर नहीं जाती है, इसलिए अंदर का पानी ठंडा। जितना ज्यादा पजरने वाला मटका आप लेकर आएंगे उतना ज्यादा पानी अंदर का ठंडा रहेगा। सिंपल। तो सिमिलरली पर्सपिरेशन, हमारी बॉडी, हमारी स्किन क्या करती है? पसीना बनाती है। बाहर जब हाई टेम्परेचर है तो स्किन मेरी पसीना बनाती है। ये जो टेम्परेचर है पसीने को उड़ा ले जाता है। पसीना अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर हीट नहीं जाती और मेरे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इतना बड़ा काम स्किन कर रही है।
छोटा सा बात थोड़ा साइड में आपको बताता हूं। हम ये भी सुनते हैं कि बड़े बड़े शहरों में नागपुर हो गया, नागपुर के बाजू में नागगीर हो गया, चंद्रपुर हो गया, यहाँ पर समर में टेम्परेचर बहुत हाई है। हम सुनते भी हैं कि हाई टेम्परेचर की वजह से कुछ लोग मरते हैं। कैसे मर जाते हैं हाई टेम्परेचर की वजह से? सिंपल, टेम्परेचर जब भी ज्यादा होता है हमारे बॉडी पसीना बनाती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती है। और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और ज्यादा पसीना बनाएंगे, और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया और ज्यादा पसीना बनाएंगे। लेकिन कब तो ऐसा होगा, कभी तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि स्किन बोलेंगे नहीं अब मैं इससे ज्यादा पसीना नहीं बना सकता, एंड दैट इज कॉल्ड एज हीट स्ट्रोक। जिस वक्त स्किन ने पसीना बनाना बंद कर दिया हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। 40 डिग्री के ऊपर हम बेहोश हो जाएंगे और 42 डिग्री के ऊपर हमारा माइंड, हमारा ब्रेन मेल्ट हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर इज 37 डिग्री। 3 डिग्री यानी कि 40 डिग्री के ऊपर हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे और 42 डिग्री के ऊपर ब्रेन हमारा मेल्ट हो जाएगा। इतना नैरो रेंज है हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और जितना अद्भुत काम टेम्परेचर मेंटेन करने का हमारी स्किन कर रही है। बगैर किसी धन्यवाद, बगैर किसी धन्यवाद। फाइन, तो हम वापस आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। स्टेज नंबर 3, जहां हमारे बॉडी ने डिसाइड किया है कि स्किन को, मसल्स को ब्लड सप्लाई और कट डाउन करेंगे हार्ट एंड ब्रेन किडनी का ब्लड सप्लाई मेंटेन करने के लिए। और मुझे मेरे बैठे बैठे समझ लेना है कि स्टेज नंबर 3 में जा रहा है। एक बात और, कोई आदमी अगर भाग के दौड़ के आता है हम उसका हाथ पकड़ते हैं तो हाथ गर्म लगता है, ठंड गर्म। कोई आदमी मर गया, डेढ़ हो गया, अब उसका हाथ मैंने पकड़ा तो कैसा लगता है? ठंडा है, ठंडा लगता है। रीजन इज सिंपल, डेढ़ आदमी है, स्किन को ब्लड सप्लाई खत्म हो गया इसलिए स्किन ठंडी हो। भाग के दौड़ के आदमी आया, ब्लड सप्लाई बहुत बढ़ गया स्किन के अंदर में और सर्कुलेशन बनाने का, हीट को छोड़ना है बाहर, स्किन गर्म। आदमी लेटा हुआ, जिस क्षण के ऊपर स्किन को और मसल का ब्लड सप्लाई कट डाउन होगा उसी वक्त हम देखेंगे कि उस आदमी को ठंडी लग रहा है, उसकी स्किन ठंडी होगी और उसे ठंडी लग रहा है, वो शिवरिंग कर रहा है, थोड़ा थोड़ा हिल रहा है। हम उसी वक्त समझ लेंगे कि स्किन को, मसल्स को ब्लड सप्लाई बॉडी ने कट डाउन किया है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया, हार्ट, लंग, ब्रेन और किडनी को ब्लड सप्लाई मेंटेन करने के लिए मसल्स और स्किन का ब्लड सप्लाई कट डाउन किया है, कम किया। द पर्सन इज मोर सीरियस, तो स्टेज नंबर 3 में चला है और अभी भी मैं एम्बुलेंस की राह देख रहा हूं, तो गलत। जितना ज्यादा सीरियस पेशेंट है उतना जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा और इसीलिए ये स्टेप सीरियसनेस के मालूम होना जरूरी है। फाइन, so now this is stage number 3 and more serious stage. Now let's go to one more stage. Next stage, stage number 4. तीन से मिलकर और बॉडी में से निकाल लेते हैं तो क्या होगा? अच्छा, स्टेज नंबर 4 पे जाने से पहले एक बात का और डिस्कशन कर लेते हैं। स्टेज नंबर 3 में, स्टेज नंबर 3 में हम उसे क्या फर्स्ट एड देंगे? वेरी सिंपल। देखो, शिवरिंग हो रहा है तो मैं सिर्फ चादर दूंगा तो ब्लैंकेट, चाय कॉफी देने से कुछ नहीं होगा, हाथ रब करने से कुछ नहीं। लेकिन एक ब्लैंकेट अगर देंगे तो ठंडी जो लग रहा है, शिवरिंग जो हो रहा है, तो कुछ हद तक कंट्रोल होगी, गर्माश उसके शरीर में आए। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम छोटी हल्की चीज है लेकिन ट्रिमेंडस बेनिफिशियल। चलिए थोड़ा हट के बात करते हैं, फिर टॉपिक पर आ जाएंगे। रिलेटेड बात है, मैंने कहा कि हमारे शरीर में 4 से 4.5 से 5 लीटर ब्लड है, डिपेंडिंग ऑन बॉडी वेट। तो ये 5 लीटर ब्लड हमारे बॉडी में क्या एक जगह रखा हुआ नहीं, इट्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। मान लीजिए आधा लीटर ये हाथ में होगा, आधा लीटर ये हाथ में।
मान लेते आधा लीटर चेस्ट में होगा, आधा लीटर चेस्ट के पीछे होगा। मान लेते कि आधा लीटर एब्डोमेन में होगा, आधा लीटर एब्डोमेन के पीछे होगा। लेकिन पैर बड़े बड़े, तो पैरों में 1-1 लीटर देना पड़ेगा और आधा लीटर फेस और ब्रेन में दे देते। आधा लीटर बोल तो 1 यूनिट, कितना यूनिट? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट हाथ में हो गया, दूसरा यूनिट यहाँ हो गया, तीसरा यूनिट चेस्ट में हो गया, चौथा चेस्ट के बैक में हो गया, 5वां एब्डोमेन में हो गया, 6वां बैक में हो गया, 7 और 8 एक पैर में, 9 और 10 1-1 लीटर दूसरे पैर में, और फेस और ब्रेन में आधा लीटर, यानी कि 5.5 लीटर हमारे बॉडी में 4.5 लीटर ब्लड होता है। एक रफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बता दिया है कि हमारे शरीर में 5.5 लीटर कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइन, अब थोड़ा आगे चलते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे कि मुझे कोई गाड़ी लोड करनी है, ट्रक लोड करनी है, ट्रक में 100 बॉक्स बैठते हैं और 10 आदमी मैंने लगा दिए कि तुम 100 बॉक्स रख करके गाड़ी को लोड करो। गाड़ी 10 मिनट में लोड हो जाना चाहिए। हर एक आदमी ने 1-1 मिनट में 1-1 बॉक्स रखा, 10 मिनट में 10 बॉक्स रखे और 10 आदमी ने 10 मिनट में 100 बॉक्स रखते, गाड़ी लोड होती। हमेशा ऐसे ही चलता था। 10 आदमी रखते थे, 10 आदमी 100 बॉक्स 10 मिनट में रख के गाड़ी लोड करते। अब किसी कारण से एक आदमी नहीं, ऐसे 9 आदमी उस दिन काम पर आए। अब उनको भी गाड़ी 10 मिनट में लोड करने का है और उसमें भी 100 बॉक्स रखना है, लेकिन आदमी अब मेरे पास सिर्फ 9 है, तो कैसा करें? वो आदमी फास्ट काम करेंगे, थोड़ा फास्ट काम करेंगे, काम बन जाए। और वही हो रहा है। हमारे हार्ट रेट बढ़ा दिए, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन हार्ट रेट बढ़ गया था, तो ब्लड उतना ही था, लेकिन लंग में फास्ट जा रहा है, फास्ट आ रहा है, और उतना ऑक्सीजन जितना चाहिए उतना ले आ रहे हैं। सिमिलरली अब 10 आदमी की जगह पे 9 आदमी हो गए, तो 9 आदमी को फास्ट काम करना पड़ेगा। मान लेते एक आदमी और कम हो गया, मान लेते एक आदमी और कम हो गया, तब क्या करें? और फास्ट काम करेंगे। एक आदमी और कम हो गया, 7 आदमी है, 10 मिनट में गाड़ी लोड करना है, 100 बॉक्स रखना है, और फास्ट काम करेंगे। लेकिन कभी तो कोई स्टेज ऐसी आएगी कि जहां पर मालूम होगा कि भी 7 आदमी काम कर सकते थे, लेकिन अब 6 आदमी हो गए, तो 6 आदमी काम नहीं कर पाए। काम कर पाएंगे लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, 10 मिनट में नहीं कर पाएंगे। अब सोचने वाली बात है कि मुझे काम तो 10 मिनट में करना है, अब मेरे पास तो आदमी चाहिए, मिनिमम मुझे 7 या 8 आदमी चाहिए ताकि 10 मिनट में काम हो जाए। तो मैं ये 1 या 2 आदमी कहां से लाऊं? सुपरवाइजर HR मैनेजर को फोन किया, सर अभी तो 6 आदमी है, 10 मिनट में गाड़ी लोड नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। जानने का कितना आदमी चाहिए था? बोले मुझे 1-2 आदमी और चाहिए, अगर 1-2 आदमी मिलते तो 10 मिनट में गाड़ी बराबर लोड हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, एक आदमी तो सिक्योरिटी में से ले ले और एक आदमी गार्डन में से ले ले। गार्डन में 2 लोग काम कर रहे हैं, उनका काम हो गया, एक आदमी गार्डन में खाली बैठे उसको ले ले, और सिक्योरिटी में अपने पास 2 आदमी लोग हैं, उसमें से तो एक आदमी, 2 आदमी तेरे को मैं दे रहा हूँ, काम पर, काम फिनिश करो, 10 मिनट में काम बराबर होना चाहिए, गाड़ी लोड होना चाहिए। बोले सब हो जाए। अब इसी प्रकार हमको ये देखना है कि हमारे बॉडी में कहाँ एक सिक्योरिटी में आदमी और कहाँ एक गार्डन में आदमी, कहाँ से मैं थोड़ा सा ब्लड और कलेक्ट करूं, ले आऊं सर्कुलेशन के अंदर, जो कि लंग में जाएगा, ऑक्सीजन को लेके आएगा और मेरे काम आएगा और मरता आदमी बच जाएगा। फिर पुराने टॉपिक पे आ रहा हूं। हमारे पैर में 1-1 लीटर ब्लड है, 1 लीटर ब्लड लेफ्ट लेग में, 1 लीटर ब्लड राइट लेग में, और बड़े बड़े वेसल्स हैं। आधा लीटर ब्लड तो इसमें स्टैग्नेंट बैठा हुआ है, जो कि फ्लो ही नहीं हो रहा है। अगर दोनों पैर हल्के से ऊपर कर देते हैं, अगर 6 इंच में ऊपर कर देते हैं दोनों पैर, सिर्फ 6 इंच, तो जो 1-1 लीटर ब्लड है दोनों पैर में, उसमें से आधा लीटर, हाफ प्लस हाफ 1 लीटर, 1 लीटर ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा, चेस्ट में आ जाएगा। हार्ट उसको यूज करेगा, ऑक्सीजन लाने के काम आएगा। जैसे कि एक आदमी सिक्योरिटी में बैठा था, एक आदमी गार्डन में बैठा था, 2 आदमी और आगे, 6 के 8 आदमी हो गए। उसी प्रकार मेरे पास 1 लीटर ब्लड और बढ़ गया। जस्ट मैंने पैर को 6 इंच ऊपर किया और मेरे पास 1 लीटर ब्लड और बढ़ गया, जो कि लंग में जाएगा, ऑक्सीजन को लेके आएगा और बॉडी को सप्लाई करेगा।
फाइन, काम एकदम छोटा सा। स्टेज नंबर 3 के अंदर ब्लैंकेट दे दिया और दोनों पैर को चेंज ऊपर उठा के नीचे सपोर्ट लगाना। स्टेज नंबर 3 सिंपल फर्स्ट एड, बेस्ट फर्स्ट एड, मरने वाला आदमी बच जाएगा। Now let's go to stage number 4. 300 ml ब्लड हमारा और लॉस। फिर ध्यान में रखिए कि आदमी लेटा हुआ है, ब्लैंकेट है, पैर ऊपर है। स्टेज नंबर 3 में Now stage number 4. 300 ml ब्लड हमारे बॉडी में से और लॉस हो जाए तब क्या होगा? आंसर वेरी सिंपल। जितने आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं सारे के सारे आंसर जो है इस फिगर के अंदर है। सारे के सारे आंसर जो है इस फिगर के अंदर बैठे हुए। दिस फिगर, जितने भी आंसर है इस फिगर के अंदर बैठे। देखिए मैंने आपको शुरू में बताया कि ऑक्सीजन वाला ब्लड रेड कलर का होता है, विदाउट ऑक्सीजन वाला ब्लड ब्लू कलर का। फाइन, आपने छोटे बच्चों को कभी देखा होगा उंगली में धागा बांधते हैं, घुटना में, काफी छोटे बच्चे, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी चाइल्ड मैंने देखा है कि हाथ में धागा बांधते। धागा बांधने के बाद सामने वाली उंगली का कलर कौन सा हो जाता है? ब्लैश। क्यों? ब्लड मेरी उंगली में उसी में से ऑक्सीजन लिया जा रहा है और ऑक्सीजन निकालने के बाद ब्लड का कलर जो रेड था, ब्राइट रेड था, डल रेड हो गया, डल रेड से ब्लू चेंज हो गया। और ज्यादा देर तक अगर बांध के रखेंगे तो डार्क ब्लू हो जाएगा और धीरे से ब्लैकिश कलर का हो जाएगा। द मोमेंट हम थ्रेड निकाल लेते हैं नया फ्रेश बढ़ जाएगा, ऑक्सीजनेटेड बढ़ जाएगा और मेरी जो उंगली थी ब्लू कलर की हो गई थी, ब्लैकिश कलर की हो गई थी, वो फिर से रेड हो जाएगी। ये ब्लू कलर जो है इसको बोलते हैं साइनोसिस। क्या बोलते हैं? साइनोसिस। This blue color is called as cyanosis. This is called as local cyanosis. मैंने धागा बांधा, उंगली ब्लू हो गई, धागा खोल दिया, उंगली फिर से रेड हो गई। This is called as local cyanosis. Obstruction प्रॉब्लम लोकल था। ये उंगली में धागा बांधने से ये उंगली ब्लू मेरी हुई क्या? नहीं। ये उंगली ब्लू हुई क्या? नहीं। जिस उंगली में धागा बांधा था उसी में ब्लू नहीं था, लोकल प्रॉब्लम था। लोकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, उंगली का धागा खोल दिया, ब्लूनेस आ गया। This is called local cyanosis. आगे चलिए एक छोटा एग्जांपल और। मेन टॉपिक से आने के पहले, मेन टॉपिक पर पहुंचने से पहले फिर से एक छोटा एग्जांपल। अब आप जो भी लोग हैं, मान लेते कि मेरे वेबिनार के अंदर अभी आप 50 लोग खाना खाने के लिए बैठे। मेरे वेबिनार के अंदर आप 50 लोग ट्रेनिंग में बैठे और बॉस ने आपके लिए खाना अच्छे से होटल से बनाया है, लेकिन बॉस को मालूम नहीं था कि 50 लोग पार्टिसिपेंट हो जाएंगे करके उन्होंने 40 आदमी के खाना पकाया। 40 आदमी के खाना आने की वजह से क्या हुआ कि एक लाइन में 40-50 लोग खड़े हो गए। 50 लोग एक लाइन में खड़े होने के बाद खाना डिस्ट्रीब्यूट किया 1 नंबर से लेकर तो 40 नंबर तक, आखिरी के 10 लोग भूखे रहे। हमारे बॉडी में ऐसा एक चैनल नहीं होता है, हमारे बॉडी में नंबर ऑफ चैनल्स है और हमारा ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन है जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब इसी 50 आदमी को अगर 10 लाइन में खड़ा कर देते तो एक एक लाइन बन गई है 5-5 आदमी, एक एक लाइन बन गई है 5-5 आदमी। चलो मान लो तो एक एक लाइन में हम 10-10 आदमी खड़ा कर देते, शॉर्टकट थोड़ा कर देते, इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 इधर 10 और खाना हमारा जैसा है बीच में रखा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। मतलब एक एक लाइन में कितना चला गया? 8-8 खाना चला गया। पहले 8 आदमी को खाना मिल जाएगा, लास्ट के 2 आदमी भूखे। हर लाइन के अंदर लास्ट के 2 आदमी भूखे। 5-5 का लाइन अगर लगाते हैं तो हर लाइन में आखिरी का 1 आदमी। 5-5-5-5 की लाइन लगा देते, 10 लाइन लगी, 40 खाना डिस्ट्रीब्यूट किए। पहले 4 लोगों को मिल जाएगा, लास्ट का 1-1 आदमी। मतलब लाइन में जो आदमी लास्ट में खड़ा है उसको खाना नहीं मिलेगा।
अब ये हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम है इसलिए ऑक्सीजन कम। अब ये ऑक्सीजन निकला हमारे हार्ट से लेकर धीरे 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 निकला, यहां ऑक्सीजन खत्म हो गया। यहां जाने के बाद देखिए ऑक्सीजन खत्म हो गया, इतना पार्ट जो बोलेगा आगे का पार्ट है ये क्या हो गया, ब्लू। एक उंगली ब्लू नहीं होगी, सारी उंगलियां ब्लू हो जाएंगी। राइट हैंड की ब्लू हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड की ब्लू हो जाएंगी, नोज का टिप ब्लू हो जाएगा, टंग का टिप ब्लू हो जाएगा, लिप्स ब्लू हो जाएंगे, ईयर लोबिस ब्लू हो जाएंगे। जितने लोग लास्ट में खड़े हैं सारे के सारे ब्लू हो जाएंगे और इसी को बोलते हैं सेंट्रल साइनोसिस। So this is called a central cyanosis. Cause periphery में नहीं, जैसे उम्र को धागा बांधा खोल दिया साइनोसिस चला गया, that is peripheral cause. या cause सेंटर में। So everybody is cyanosed. हर उंगली साइनोस है, nose साइनोस है, ear lobules, tip of the tongue. Everybody standing at the end is getting less oxygen and cyanosed. यहां मैंने कारण देखे कि ब्लड वॉल्यूम कम होने से हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कम मिला, इसलिए साइनोसिस हुआ, सेंट्रल साइनोसिस हुआ। लेकिन कोई भी आदमी अगर मैं साइनोसिस वाला देखता हूं तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि उसका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया और इसीलिए उसको साइनोसिस हुआ, सेंट्रल साइनोसिस हुआ? मतलब हर सेंट्रल साइनोसिस वाले आदमी का ब्लड वॉल्यूम कम हो? नहीं, ऐसा नहीं। देयर आर अदर रीजंस, काफी कुछ दूसरे कारण भी हो सकते हैं जहां पर सेंट्रल साइनोसिस होगा। बेसिक कारण एक ही है कि जो एंड्स में खड़े हैं उनको खाना नहीं मिल रहा है, मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। बेसिक कारण एक ही है।